Hi everyone, now we will do the performance IQ, and as we know the first sub-test of performance IQ is picture completion. So first you need to see this. In picture completion we have total 20 items and we can help the child with two first कार्ड्स. जो पहले दो कार्ड्स हैं उसमें हम उसको हेल्प कर सकते हैं और उसके बाद हम टेस्ट ले सकते हैं. हर पिक्चर कार्ड के लिए उसको 15 सेकंड्स दिए जाएंगे. व्हाट वी हैव टू डू इस पिक्चर कार्ड में जो पिक्चर्स हैं उसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग है एंड द चाइल्ड नीड्स टू टेल अस कि वो क्या मिसिंग है. अगर वो सही बताता है यू विल स्कोर 1, अगर वो गलत बताता है तो 0, या वो 15 सेकंड से ऊपर टाइम लेता है तो आप कार्ड पलट देते हैं, उसको स्कोर नहीं करते हैं. लास्ट के जो 5 कार्ड्स हैं 16, 17, 18, 19 एंड 20th, ये डिफ़िकल्टी लेवल में हाई हैं. तो इसमें अगर वो एटलीस्ट 3 का आंसर सही दे देता है तो यू विल गिव 1 बोनस पॉइंट. और 4 कंसेक्यूटिव फेलियर्स, एक के बाद एक, अगर 4 वो चीज़ें नहीं बता पाता है देन यू विल डिसकंटिन्यू द टेस्ट. So let's see now this booklet. As we said, we have the booklet. इस booklet में कुछ picture cards हैं और ये picture cards में आप देख सकते हैं कि कुछ missing है. So the child has to tell. आप उसको पहले थोड़ा guide भी कर सकते हैं. Card number 2 में क्या missing है आप देख पा रहे हैं. 3 में mouth. इसी तरह से आप ये बढ़ता चला जाएगा डिफ़िकल्टी लेवल. कैट का विस्कर मिसिंग है, पूंछें नहीं है उसकी. इसमें हाथ का नेल मिसिंग है और इस तरह से डोर में इसका हिंज मिसिंग है ना. कैन यू सी? आप देखते जाएं इसको. सी लाइक दिस एंड देन यू विल स्कोर अकॉर्डिंगली. सही आंसर पे 1 स्कोर और गलत आंसर पे या 15 सेकेंड्स पे नहीं होने पर आपको उसको 0 देना है. एंड यू हैव टू कीप द स्टॉप वॉच जिसमें आप कार्ड चेंज करेंगे हर 15 सेकेंड्स पे. अब यहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड फॉर्म है, इस रिकॉर्ड फॉर्म में यू कैन सी हियर इसको लाइक दिस. सी बीच में जो 2 गलत है लेकिन 4 नहीं है तो वी कंटिन्यू देयर आफ्टर एंड कंसेक्यूटिव 4 फेलियर्स पे हमने डिसकंटिन्यू कर दिया एंड द स्कोर वी विल काउंट बाय काउंटिंग दीज राइट करेक्ट मार्क्स. So now let's move on to the another category of subtest in the performance IQ testing of MISIC. Before moving ahead, I would like to show you what we need for this. So we need the same booklet, MISIC booklet that I showed you in the kit, and we need these blocks. These are total 9 blocks in the kit, but initially we need 4 for the child. And how we are going to do it, I'll explain while going through the brief of it. So total there are 10 designs. 10 block designs are there. A, B and C are 3 and then 1 to 7 are 7 cards, and in this booklet we have it here. See, this is C, this is B and this is A. This is in a form of a booklet, but you can also remove it from here, but it's not better not to do that. And then 7, 6, 5, 4, all these designs are there. Can you see? See all these designs. These are to be done by the client or by the child. So now what we do, we start with design A. Design A, B and C are basically for children with under 8 years of age, and they can go beyond that if they are able to do, but the procedure is a little different, so you will have to be careful in understanding it. So design A is this. Now this is not for the child, you don't have to show it to the child. What you need to do, you just keep it aside and take 4 blocks for yourself and 4 blocks you give to the child. Now you do it by yourself. Let him see. Let the child see. So you will do like this. This is the design, and then this, and ask the boy or the girl to do by himself or herself. Now if he succeeds on the first attempt, then you will score 2 points. 2 points if succeeds in first trial. And if
the child is not able to do it, then you do with his or her blocks like this. Demonstrate again. If a child is able to do the second time, you just again mix it up and then give it again. And if the child is able to do it like this, same as yours, then you will assign 1 point. And the total time given for this is 45 seconds. So now what to do next? We are supposed to now do the design B and C. A we already did, this one, this we already did. Now we are moving to B and then C. For B, you need to first arrange your own blocks behind the screen. So you can take a screen or kind of a booklet like this. You can make it separate and you can arrange your designs this side. So it's going to be something like this, like this. So this is the design. Now you can show the child your design and then ask to do the same, copy it. So if the child is able to do it, then you will score. If not, then you will not score. Like this. So this is, again, this trial will be for 45 seconds. Now about design C. Use the card of design, this card. You don't have to use the screen, you don't have to demonstrate live. You just take this card because now the difficulty level is increasing. This is design C card. So you just take the card and ask the child to arrange the blocks in this manner. So let's see if the child can do. So if he's very fast, he can do it this way. If not, then maybe he doesn't score. So, and you will note the time, 45 seconds for it. Again, this is for below 8 years of age. Now we also move forward for the remaining cards. Again, we are still in the block design. It's a lengthy one, so we need to be very precise about it. Now, when we do it for children above 8 years of age, 8 years and above, then we start with card number C and proceed further. In this card, we do not demonstrate, we do not make a screen and then create the design ourselves. We simply show the cards here, these cards. So we start with C, this one, while showing the card, and then we move on to the first card here, this first design, then second design, and then third, fourth, fifth, sixth and seventh. This is seventh. This one. ठीक है, तो ये करने के बाद हम एक चीज़ इसमें कर सकते हैं, बिकॉज द चाइल्ड मस्ट बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम सी कार्ड पे उसको 2 ट्रायल्स दे सकते हैं फॉर अ प्रैक्टिस. अब अगर वो ये कार्ड्स का डिज़ाइन बनाने में लगातार 2 को करेक्टली नहीं बना पाता है विद इन द गिवन टाइम, तो उसमें उसको एग्जिट कर दिया जाएगा, वो उसका कंप्लीट हो जाएगा. आई मीन यू डोंट हैव टू परफॉर्म फर्दर. नाउ हाउ टू स्कोर इट? फर्स्ट यू कैन गिव एडवांस स्कोर फॉर ए एंड बी. ए एंड बी को 4 पॉइंट्स देना है और सी अगर उसने करेक्टली कर लिया है तो 2 पॉइंट्स उसको देना है. 1 to 7 जो कार्ड्स हैं उसमें हर कार्ड पे 4 पॉइंट्स देना ही देना है अगर वो विद इन टाइम कर रहा है, और हर डिज़ाइन जो विद इन टाइम कर रहा है, टाइम लिमिट्स हमने जो दी हैं उसकी, उसमें कर रहा है. और बोनस भी दिया जा सकता है इन केस द चाइल्ड कंप्लीट्स इट बिफोर टाइम. नाउ आई विल शो यू हाउ वी गिव द बोनस. सो दिस इज द टेबल फॉर बोनस. सी, कैन यू सी इट हियर? 1 to 7 कार्ड्स में जो टाइम है वो ये है 75 सेकेंड्स. इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ये सब 75 सेकेंड्स मिलेंगे 4 कार्ड्स तक. 5, 6 and 7 में 150 मिलेंगे. यानी कि 2.5 मिनट. यस, है ना, 2.5 मिनट मिलेगा इनको.
अगर ये वाली चीज़ उन्होंने इस हिसाब से कर ली, लाइक 75 सेकेंड्स में जो करना था उसने 1 से 10 सेकेंड्स के बीच में कर लिया है, तो 7 पॉइंट्स हैं। वैसे क्या मिलना था, 4 पॉइंट्स मिलना था, लेकिन अभी 7 मिलेगा। अगर उसने 11 से 15 सेकेंड्स में कर लिया है तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें बोनस ऐड हो गया, 2 बोनस ऐड हुआ है। और अगर उसने 16 to 20 सेकेंड्स में किया है देन यू विल असाइन 5 पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ 4। लेकिन अगर 75 के अंदर कर लिया है, इसके बाहर 20 सेकेंड्स के ज़्यादा लिया है लेकिन 75 के अंदर करेक्टली डिज़ाइन कर लिया है, तो उसको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। Similarly, it will go for others also. So I'll now moving ahead to another performance test in this intelligence testing MISIC, and the next one is object assembly. So before moving ahead, I'll just show you how we keep it in the kit and how we use it. It is kept like this, right? This is the box, and as I showed you in the beginning, it is kept separately, and we have 4 items or 4 objects to be assembled. जो हमने काम कराना है बच्चे से वो 4 चीज़ों पे कराना है, 4 ऑब्जेक्ट्स पे। एक है मैनिकिन, the other is horse, face and auto. These are in the increasing difficulty levels. Mannequin means a man figure, a human figure. तो ये चारों को कैसे कराना है उस पे हम एक एक करके चलेंगे और उसकी स्कोरिंग सबकी अलग अलग है। So in the next video I'll start, we have 4 videos for that, and I'll start with one after the other. Yes, so while moving forward in the object assembly section, first I will explain about the mannequin figure. In mannequin, we ask the child or the client to join the pieces and which will make a boy, and be assigned 120 seconds for it or 2 minutes for it. So this is how we do it. These are the objects in the kit, and we give the objects to the child and say that this will make a boy. So now he needs to do it in 120 seconds. तो वो इस तरह से, because now we can do it faster, लेकिन उसको टाइम लग सकता है क्योंकि ये ब्लॉक्स थोड़े कंफ्यूजिंग तो होते हैं। हाँ, इस तरह से बनाया, एंड देन यू सी कि इसको कहाँ लगाऊँ, उसको कहाँ लगाऊँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन के बाद फाइनली फिक्स हो जाता है। Now this is mannequin. अब ये है परफेक्ट इमेज। ये परफेक्टली अगर बच्चा कर लेता है देन वी गिव 4 points, 4 points या फिर बोनस। अगेन आई शो यू द टेबल ऑफ बोनस जिसके अंदर की बोनस दिया हुआ है। जैसे मैनिकिन के लिए 120 सेकेंड्स, अगर उसने 1 से 10 सेकेंड में किया है तो 7 पॉइंट्स, 11 से 15 में किया है तो 6 पॉइंट्स, और इसी तरह से चलता जाता है। और इसी तरह से हॉर्स के लिए अलग बोनस पॉइंट्स हैं। ये टेबल तब यूज़ करना है जब वो टाइम से पहले कर लेगा। अगर वो पूरा टाइम लेता है और बना लेता है, या इसके बियॉन्ड टाइम लेता है और बना लेता है, तो उसको 4 पॉइंट्स मिलेगा। जल्दी बनाएगा तो बोनस भी मिलेगा। अब इस फिगर में कुछ इम्परफेक्शंस भी हो सकते हैं। इम्परफेक्शंस किस तरह हो सकता है, वो लेग्स को कहीं आर्म्स की जगह लगाने की कोशिश करें, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से लगाने की कोशिश करें, तो आप उसको मार्क्स देंगे क्योंकि उसने ये तो करा है। लेकिन आप कितने देंगे, आप 2 पॉइंट्स देंगे क्योंकि इसने ये गलत जगह लगाया है। देन लेग्स इंटरचेंज्ड और इन्वर्टेड, अगर उसने लेग्स को इंटरचेंज कर दिया है, कुछ इस तरह से कर दिया है, या इन्वर्टेड लगा दिया है, कुछ ऐसे लगा दिया है, तो आप उसे पॉइंट्स देंगे लेकिन 3 देंगे। और अगर उसने ये सब कुछ नहीं लगाया, क्योंकि जब थोड़ा सा डिलेज होते हैं बच्चे में तो वो नहीं समझ पाता, और उसने कहा ये बन गया, ये मैन बन गया है, बॉय बन गया है, तो आप उसको 1 पॉइंट देंगे। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा हमारा फिगर है दैट इज हॉर्स। हॉर्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ जाएगा। तो वी कैन मेक इट, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो जाती है देखते देखते, मैं थोड़ा जल्दी बता दूंगी, लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, देखने में सिंपल लगे तब भी। तो हॉर्स में क्या है, हॉर्स में उनको बताना है कि दीज पीसेस विल मेक अ हॉर्स। क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो 180 सेकेंड्स या 3 मिनट्स दिए जाएंगे। स्कोरिंग मैनिकिन जैसा ही है, परफेक्ट स्कोर इसमें 4 की बजाय 6 है, प्लस बोनस
जो टेबल दिखाया था मैंने बोनस का, उसी में से बोनस पॉइंट्स कि कितने बिफोर टाइम अगर कर रहा है, कितना जल्दी कर रहा है, उसके हिसाब से बोनस पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं। बट अदरवाइज अगर वो विद इन टाइम परफेक्ट फिगर बना लेता है तो उसको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। सो वेरी क्विकली आई विल डू इट फॉर यू एंड आई विल शो। कुछ इस तरह से बनेगा ये, कुछ इस तरह से, आई थिंक सो, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका हॉर्स का फिगर बन गया। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इस शीट पे मैंने दिया है कि अगर वो इसको थोड़ा सा इम्परफेक्ट बनाता है, दिस इज द परफेक्ट फिगर एंड द चाइल्ड विल गेट 6 पॉइंट्स और अ बोनस पॉइंट अगर उसने जल्दी बनाया है। अगर उसने स्टमक को उल्टा लगा दिया है लाइक दिस, अगर स्टमक उल्टा लग गया है तो उसको 5 पॉइंट्स देना है। अगर मिड पीस ओमिट हो गया है, हटा दिया है, ऐसे बना दिया है और लेग्स इंटरचेंज हो गए हैं, तो वो लग रहा है हॉर्स जैसा, वो कहता है हाँ हो गया, तो यू विल गिव 4 पॉइंट्स, ठीक है। एंड इफ मिड पीस एंड लेग्स आर इन्वर्टेड, ये भी उल्टा कर दिया और कुछ इस तरह से बना दिया, उसको लग रहा है घोड़े जैसा, है ना, तो उसके लिए आप देंगे 3 पॉइंट्स, ठीक है। और मिड पीस और लेग्स टोटली हटा दिए हैं तो यू विल गिव 2 पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर द फेस। फेस में कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी। किस तरह? वी डोंट हैव टू रिवील ऑब्जेक्ट नेम, वी विल जस्ट गिव द ब्लॉक्स, जो ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हैं उसको देंगे और बोलेंगे कि आपको इससे कुछ बनाना है। 180 सेकेंड्स हैं आपके पास, 3 मिनट्स, और परफेक्ट स्कोर इसका 6 पॉइंट्स है प्लस बोनस जो मैंने टेबल में दिखाया था। अब कैसे करना है ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताती जाती हूँ। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, ये हमने देना है बच्चे को और उसको इससे बनाना है। सो इट लुक्स लाइक समवॉट फेस, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये होता जाएगा। कुछ इस तरह से बनेगा ये, like this, I think so. We all make mistakes. कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, शायद ऐसे, हाँ, yes, I could do it. तो ये बन गया फेस। अब इसके साथ फिर कुछ कंडीशंस है। दिस इज द परफेक्ट थिंग। ये अगर इस तरह से वो विद इन टाइम बनाता है या जल्दी बनाता है तो उसे 6 पॉइंट्स प्लस बोनस मिल जाएगा। लेकिन कुछ इम्परफेक्ट फिगर भी हो सकती है। सो आई विल टेल यू हाउ। सो दिस इज द फिगर। अगर उसने आई इन्वर्टेड या हेयर पीसेस ओमिट किया है, हेयर पीसेस नहीं लगाए हैं और एक आई हटा दी है या इन्वर्टेड लगाई है, उल्टी लगा दी है, इन्वर्टेड आई और हेयर पीसेस ओमिटेड, देन वी आर गिविंग हिम 5 पॉइंट्स, ठीक है। अगर उसका नोज ये तो लगा है और ये भी ठीक है, लेकिन उसका नोज एंड माउथ एंड चिन, नोज या माउथ में से कोई एक चीज और चिन हट जाता है, ऐसे या फिर लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरह का बनाता है तो हम कितना देंगे? 4 पॉइंट्स। वी आर गिविंग 4 पॉइंट्स। अगर ये सब तो लगा है लेकिन लार्जर हाफ हट जाता है ऐसे, या फिर ये भी हट जाता है लाइक दिस, देन वी आर गोइंग टू गिव 3 पॉइंट्स ओनली। एंड इफ only the larger half is there,
बाकी कुछ नहीं है, वो नहीं लगा पाया और इतना लगा के उसने छोड़ दिया, then we will give only 1 point. So this is the last one, that is auto in the object assembly section of performance test of MISIC. This is the highest level of difficulty, and it doesn't look like it's that difficult, but actually it is. So I'll show you what all it involves. इसमें भी 180 seconds या 3 minutes का टाइम दिया जाता है. Again you don't have to tell कि ये इससे क्या बनने वाला है. उसको ऑब्जेक्ट का नाम आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ पीसेस देने और बोलना है कि इसको बनाओ. परफेक्ट स्कोर अगेन 6 पॉइंट्स और बोनस होगा. लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इसका हाई है. एंड एक्चुअली आई मस्ट टेल यू कि वो बनने के बाद वो चीज़ लगती भी नहीं है ऑटो, जैसा कि हमें लगता है कि वो ऑटो है, लेकिन थोड़ा सा बेयर करना पड़ता है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज टूल है और आपको उससे मिलके चलना होता है. सो फर्स्ट आई विल शो यू द फिगर एंड देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट ऑल दीज. सो इट इज समवॉट लाइक दिस. So I'm doing it right. I think it is like this, and then it is, this is another piece. Actually I tried it earlier, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, बट अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल होता है करना किसी बच्चे के लिए. यूजुअली इसमें फेल ही हो जाते हैं, बड़े भी फेल हो जाते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जो साथ में आते हैं कराने के लिए वो खुद कहते हैं कि हमें भी एक बारी करने दो. तो इट्स लाइक अ पजल. So this is the auto. Now this auto is a perfect figure, so you assign 6 points if the child has done it within time, और अगर उससे और जल्दी कर लिया है तो उसको बोनस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे. तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल्स बताती हूँ. This is a figure. Now if the door is inverted or reversed, door means this one. अगर ये इन्वर्टेड है या रिवर्स्ड है, ऐसे बना दिया या कुछ ऐसे बना दिया या उल्टा रख दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, सो यू विल बी गिविंग ओनली 5 पॉइंट्स. ठीक है, अभी ये गड़बड़ हो गया है, इसको ऐसे लगा देते हैं वापस लाइक दिस. नाउ इफ द ओमिटेड पीसेस 4 and 5 और 7, अगर ये 4 1 2 3 4 and 5 अगर उसने हटा दिए हैं, 4 and 5 हटा दिए हैं, या फिर 4 and 6 7 हटा दिया है, या फिर ये हटा दिया है, कुछ इस तरह की फिगर बनाई है, तो we give 4 points. ठीक. Now if 7 is omitted, ये वाला हटा दिया है और 4 को रिवर्स करके रखा है, तो 3 points. If 4 5 and 7 को हटा दिया है और या फिर 4 and 5 को इंटरचेंज करके रख दिया है, रिवर्स कर दिया है या इंटरचेंज कर दिया है, और 7 को या 7 को हटा के 6 की जगह कर दिया है, कुछ भी इस तरह की जो मैक्सिमम गड़बड़ वाला फिगर आपको लगता है, उसमें आप 3 पॉइंट्स देंगे. ठीक है. लेट्स नाउ डू द कोडिंग पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ द MISIC tool, and I'll do it straight with the sheet. This is coding. This is about coding. Coding is to give a code to certain things. So here we have 2 sections. One is for coding A section for the children who are below 8 years of age, and coding B is 8 years and above. So how we need to do? For both we have 120 seconds. 120 seconds means 2 minutes for this and 2 minutes for this. So first you have to give a practice session. So just let them see what all marks are given here. The star has this mark inside it, the circle has this one and this one and this one, like this. You can ask them to do it here. So they will see and practice it here, and if you want then you can give another set also. Now you can start the timing, and for 2 minutes the child has to fill up these.
द चाइल्ड शुड नॉट बी स्किपिंग. ऐसा नहीं है कि पहले स्टार 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 में लगा दिया या इसमें लगा दिया. ये सीक्वेंस में ही चलना है. और जैसे 2 मिनट्स ओवर होता है, यू से स्टॉप. द नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज इज द स्कोर. वो आप काउंट करेंगे और वो उसका स्कोर होगा विद इन 2 मिनट्स में. सिमिलर थिंग विद दिस कोडिंग बी. 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आप पहले एक्सप्लेन करेंगे कि ये है, दिस इज द सैम्पल पार्ट. आप उससे कहेंगे कि आप इसमें ये वाला सैम्पल ट्राई करके देख रहे हैं. एंड फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट द टाइमर. और 120 सेकेंड्स का टाइमर या 2 मिनट्स का टाइमर में आपको जितना करता है उतना उसको भी बोलना है कि आपको स्किप नहीं करना है, आपको कंटिन्यूशन में करना है. वो देख सकते हैं, इनको करते हुए इनको देख सकते हैं, इसको याद नहीं करना है. दे कैन सी इट एंड डू इट थ्रू. इसी तरह से वो इसमें देख देख के आगे कर सकते हैं. जहाँ 2 मिनट्स हुए यू विल से स्टॉप एंड देन यू विल ऑल्सो चेक. इट्स ऑल्सो अ टास्क फॉर यू कि यू विल हैव टू चेक कि उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है. जो गलत है उसको आप क्रॉस कर देंगे, जो सही है उनको काउंट कर लेंगे एंड यू विल गेट द नंबर्स एंड दैट इज द स्कोर. सो दिस इज हाउ यू स्कोर द कोडिंग पार्ट. Let's now do the last one in the performance IQ test of MISIC, and that is maze test. So you can see some mazes drawn here, and we have a sample one. We have A, B, C, and then 1, 2, 3, 4 and 5. It is again with the increasing difficulty level. The sample one you can ask the child to do under 8 years of age. उसको कह सकते हैं कि पहले आप ये करके देख लो. और आप जो 8 years के बिलो हैं उनको A और B से ही स्टार्ट कराएंगे. बट फॉर अबव 8 years of age उनको आप C से स्टार्ट कराएंगे. उसमें ज़रूरत नहीं है. लेकिन इसके स्कोरिंग हो जाएंगे क्योंकि द पर्सन अबव 8 years वो कर सकता है आराम से. अगर वो ये कर लेगा दैट मीन्स कि वो ये भी कर सकता है. तो इसके स्कोर्स आप उसको पहले ही दे देते हैं जब वो यहाँ से परफॉर्म करना शुरू करता है. नाउ इंस्ट्रक्शंस आपके बहुत क्लियर होने चाहिए कि आपको पेंसिल लिफ्ट नहीं करनी है, स्किप नहीं करनी है, लाइंस को क्रॉस नहीं करना है पेंसिल से. ये आप उसको पहले बताएंगे बच्चे को. अब स्कोरिंग किस तरह करेंगे. अगर टच होता है या क्रॉस होता है दैट इज काउंटेड एज 1 एरर. यू कैन पुट अ मार्क ओवर देयर, अ सर्कल, कि वो एक एरर हो गया है. अगर वो एग्जैक्टली सही करता जा रहा है तो परफेक्ट के लिए आप 2 पॉइंट्स देंगे. 2 पॉइंट्स. अगर उसने नॉट मोर देन 2 एरर्स किया है तो आप 1 पॉइंट दे सकते हैं. अगर 2 से ज़्यादा एरर्स हैं तो प्रॉब्लम है. लेकिन अगर उसने 2 एरर्स तक कर भी लिया है इसमें तो आप उसको 1 पॉइंट तो दे ही देंगे. नाउ आई विल शो यू अनदर टेबल. इसके मैनुअल में जो टेबल है, कैन यू सी दिस? दीज आर अलाउड एरर्स. 1 and 2 के लिए जो अलाउड एरर्स हैं वो 3 तक हैं. 3 वाले इसके लिए, इस वाले के लिए आपके 5 एरर्स अलाउड हैं. 4 के लिए 6 एरर्स अलाउड हैं एंड 5 के लिए 8 एरर्स अलाउड हैं. तो ये अलाउड एरर्स का क्या मतलब है कि इससे आपकी स्कोरिंग डिटरमिन होगी. तो से फॉर एग्जांपल आपके तो टाइम है यहाँ पर, हर उसके पास जो फिगर्स लिखी हैं 30, 30, 30, 30, 45, 40, 120, 120. ये टाइम है सेकेंड्स में जो आपको स्टॉप वॉच के साथ लगा के उसको ये भरवाना है. नाउ अबाउट द एरर. इफ देयर इज नो एरर देन तो परफेक्ट पॉइंट्स आपको 3 मार्क्स देने ही देने हैं. आपको 3 पॉइंट्स देने हैं अगर कोई एरर नहीं है. फर्स्ट एरर सब्सट्रैक्ट्स 1 पॉइंट. एक एरर आ गया तो 1 मार्क उसका कम हो जाता है. 2 एरर्स आ जाते हैं तो 2 मार्क्स कम हो जाते हैं. लेकिन थर्ड एरर जब तक भी आता रहे, जो अलाउड एरर हैं जो हमने यहाँ फिगर बताई थी, यहाँ तक उसको रिलैक्सेशन मिलता है. सो यू कैन सी हियर फर्स्ट एरर सब्ट्रैक्ट्स 1 पॉइंट and the second error subtracts the second point, but the third point is not subtracted until the maximum allowed errors have been passed. Maximum say for example 4 वाले में here allowed errors हैं 6. तो जब तक उसके 6 नहीं आ जाएंगे आप थर्ड मार्क डिडक्ट नहीं करेंगे. फर्स्ट एरर पे आप फर्स्ट मार्क हटा लेंगे, सेकेंड एरर पे आप सेकेंड मार्क हटा लेंगे,
लेकिन जब तक उसके 6 एरर्स नहीं होंगे आप थर्ड मार्क नहीं हटाएंगे। सो इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो आप उसमें सेम टाइम पे स्कोरिंग नहीं कर सकते। यू जस्ट नोट द एरर्स एंड देन यू सी फ्रॉम हियर एंड देन डू द स्कोरिंग। So this is all about MISIC, and I hope this was interesting, also complicated, and I'm again saying that it requires a lot of hardship, lot of practice, alertness and everything. और आपको time manage बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। While doing the test आपको उसका टाइमर का यूज़, स्टॉप वॉच चलाना और न्यूट्रल रहना, बच्चे को ऐसा फील नहीं कराना कि यू आर स्कैर्ड या बच्चा कुछ गलत कर रहा है। डोंट गिव एनी एक्सप्रेशन, उसको आराम से करने देना है। ऑल दीज मैटर व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। कंटिन्यूएशन टू माई वीडियोज़ ऑन MISIC test, I would like to now conclude with the calculation of IQ, how you reach to this conclusion. So you have done the administration, now you know how to conduct the test, how to score it, and you have number of scores in your hands. अब इन स्कोर्स का आगे क्या करना है थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि अभी फाइनल IQ तो निकला नहीं है ना। IQ निकालना कैसे है उस पे बात करना ज़रूरी है। सो यू हैव दिस मैनुअल एज यू नो, आपका MISIC का ये मैनुअल है आपके पास। इसके अंदर आपके नॉर्म्स टेबल्स हैं, एज नॉर्म्स हैं, एज 6 ऑनवर्ड्स टिल 15 ईयर्स जिस पे ये एप्लीकेबल है टेस्ट, और 15 ईयर्स तक में अलग अलग ईयर्स 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से करके सारे सब टेस्ट का नॉर्म्स दिया है। नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड स्कोर्स in which we convert the raw score into it and then we reach to the final digits, और उन डिजिट से हम IQ निकालते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं यही IQ हैं, लेकिन फाइनल 1 IQ कैसे निकालना है उसके बारे में बात करेंगे। सो आई टेल यू लाइक देयर आर नंबर ऑफ टेबल्स। सी एज यू हैव दिस फॉर 11 ईयर्स, कैन यू सी हियर, जैसे 11 ईयर्स का भी है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो अगर बच्चे की उम्र 11 साल है, इसमें मंथ्स कंसिडर नहीं है, 11 कंप्लीट है तो आप 11 साल लेंगे। आप ये वाला पेज ओपन करेंगे, नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, अर्थमेटिक, ये सब ऊपर सब टेस्ट शॉर्ट में लिखे हुए हैं। दिस इज द सेक्शन फॉर वर्बल IQ एंड these are the standard scores for परफॉर्मेंस IQ, PIQ। अभी ये टेबल्स में आपको 2 कॉलम्स नजर आएंगे। यू विल सी हियर रॉ स्कोर्स एंड देन TQ। ये कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड स्कोर है जो कि आपको कन्वर्ट करना है। सो से फॉर एग्जांपल अगर आपका इंफॉर्मेशन कैटेगरी में उस बच्चे का 16 आया है, इंफॉर्मेशन कैटेगरी में अगर जो उसका रॉ स्कोर है जो आपने कैलकुलेट किया है, जो हमने सब टेस्ट में स्कोरिंग की थी उसके बाद आपको ये स्कोर मिलता है। से फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग 16, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे 102 में। दिस इज द IQ फॉर दिस पर्टिकुलर सब टेस्ट। ठीक है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो ये आपको स्टैंडर्ड स्कोर में बदलना है। फिर आप कॉम्प्रीहेंशन में जाएंगे। से फॉर एग्जांपल कॉम्प्रीहेंशन में उसने 18 लिया है, तो आप 18 में देखेंगे कितना है, 117। तो 117 इसका IQ है इस सब टेस्ट का। तो आप सिंगल एरियाज का भी निकाल सकते हैं एंड आप सबका लेते जाएंगे। एंड एज यू हैव इन योर रिकॉर्ड फॉर्म, you have the columns here to note it down, the raw scores and the IQ, ये आप साथ साथ लिखते जाएंगे। Finally, when you are done with all these, अपने सब के ले लिए जो जो आपने टेस्ट के कंडक्ट किए थे। एक लिबर्टी इसमें है कि अगर आप सारे टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी बच्चे के, तो एटलीस्ट 4 इस सेक्शन से और 4 इस सेक्शन से करते हैं। यहाँ पर वोकैबुलरी का सब्स्टिट्यूट है डिजिट स्पैन। What does that mean? वोकैबुलरी में कभी कभी उस तरह की एजुकेशन बच्चे ने नहीं ली होती है, वो वर्ड्स उसके लिए बिल्कुल अननोन हो सकते हैं, तो उस केस में वही इंटेलिजेंस का पार्ट हम डिजिट स्पैन से भी देखते हैं। लेकिन ये इस तरह से नहीं करना है कि स्कोर्स इम्प्रूव करने के लिए आपने दोनों लिया और जो बेटर है उसको ले लिया। आपको कोई एक ही चूज़ करना है ना। आप यू आर ऑलरेडी अवेयर कि उसको वोकैबुलरी वाला पार्ट उतना वो एडजस्टेड नहीं है, तो आप डिजिट स्पैन करेंगे। बट इट्स गुड इफ़ यू डू ऑल दीज। टाइम लगता है लेकिन सब कर लेना उतना ही रिलायबल बनाता है टेस्ट को।
सो व्हेन यू हैव कन्वर्टेड द रॉ स्कोर्स इनटू स्टैंडर्ड स्कोर्स, सबके स्टैंडर्ड स्कोर्स आपने नोट कर लिए हैं, इसी तरह से ये वो परफॉर्मेंस पार्ट के भी कर लिए हैं. नाउ व्हाट यू डू, यू टेक द एवरेज. आप वर्बल वाले को प्लस करेंगे और जैसे आपके वर्बल में 6 सब टेस्ट हैं, देयर आर 6 सब टेस्ट, इसको एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाय 6. तो ऑल द IQ स्कोर्स को लिया डिवाइडेड बाय 6. ये जो स्कोर आया ये आपका वर्बल IQ है. इसी तरह से परफॉर्मेंस के सब टेस्ट के आप ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ सब टेस्ट. तो आपने इसमें 5 किए थे, हमने जो इसमें करा है वीडियोस में 5 किए, तो डिवाइडेड बाय 5. दैट इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट एवरेज. एवरेज आपको फिर PIQ का भी मिल गया. अभी आपका VIQ एंड PIQ दोनों का एवरेज आपके पास है. देन यू विल ऐड अप बोथ एंड डिवाइड बाय 2. फाइनल एवरेज निकालेंगे. ये जो आपका निकलेगा, दिस इज द IQ, द फाइनल IQ, कंबाइंड कंप्लीट IQ ऑफ द चाइल्ड, जो कि मिसिक के थ्रू आपने निकाला है. इसी तरह से यू हैव नंबर